Hello student, very precious good morning to all of you. Welcome to Dr. Sanjay Singh Biology tutorial. Today in this content, the nature of bonds linking monomer in a polymer means some organic compound, they are present in the nature, they are polymer in form and they are joined with each other with the help of a special bond and to form a polymer. The first example of the polymers is what? Protein. वो क्या है? प्रोटीन. तो प्रोटीन इज व्हाट? प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड. पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड. यहाँ पर क्या होंगे? एमिनो एसिड दे आर ज्वाइंट विथ ईच अदर. यहाँ पर क्या होंगे? एमिनो एसिड ज्वाइंट विथ ईच अदर by peptide bonds. एक बॉन्ड से जुड़, कैसे जुड़ रहे हैं? एग्जाम्पल्स में आपको मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं. Here at the NH2, this is the first amino acid CR1, this is the side chain H, and here the COH. Share with another amino acid H, NH, CR2, H, and COH. Here carboxylic group का H and OH of the carboxylic groups शेयर विथ H of the amino groups के साथ शेयर करता है और ये रिलीज होता है. वन वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज. आफ्टर दैट बोथ द अमीनो एसिड दे आर ज्वाइंट विथ ईच अदर with the help of a special bond, and this bond is known as polypeptide bonds. CONS. This is the special bonds are occur in between the two amino acids, that is known as peptide bonds. Here is the peptide bonds. Peptide bond. तो विद हेल्प द प्रोटीन कैसे बनता है, पॉलीमर कैसे बनेगा? तो मेनी ऐसे अमीनो एसिड दे आर ज्वाइंट विथ ईच अदर. ज्वाइंट हो रहे हैं. द फर्स्ट अमीनो एसिड का क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सेकेंड का अमीनो ग्रुप शेयर विथ ईच अदर टू फॉर्म ए बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. एंड ईच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वन वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज. इसी तरह से दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा, ऐसे पूरा पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है. हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाईपेप्टाइड. ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ डाईपेप्टाइड्स. स्ट्रक्चर ऑफ डाईपेप्टाइड. If many amino acids they are joined with each other to form a polypeptide or polymers. ये क्या बनाएगा? Polypeptides or polymers. This is the second examples or polysaccharides. Second is the polysaccharide. Polysaccharide, this is the polymer of monosaccharide. Polymer of monosaccharide. ये monosaccharide का polymer होगा monosaccharide. And all monosaccharides joins with each other by glycosidic bond. कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो दिस स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर अकर इन बिटवीन द मोनोसैक्राइड्स, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. हियर एग्जाम्पल्स में आपको मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैक्राइड्स. सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. Glycogen, this is the polymer of the glucose. Starch, this is the polymer of the glucose. Inulin, this is the polymer of fructose. ऐसे many examples are mentioned. तो आपको एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा है कैसे ये जुड़ते हैं. Here is the one glucose molecules.
CH2OH, H, OH, H, OH, H, OH and here is the H, OH. अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इनके बीच में ये शेयरिंग होगी, इसका H और इसका OH ये रिलीज हो जाएंगे और एक स्पेशल बॉन्ड्स आर फॉर्म. हियर द ग्लूकोज मालिक्यूल, हियर द बोथ द ग्लूकोज दे आर ज्वाइंट विथ ईच अदर. ये दोनों जुड़ जाएंगे टू फॉर्म, ये आपको ओलिगोसैकेराइड्स के फॉर्म में आ जाएंगे. नेक्स्ट CH2OH, H, OH, H, OH and here is the H. CH2OH, H, OH, H, OH. So special type of bonds are formed in between the monosaccharides unit and this bond is known as glycosidic bond. ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये 1 to 4 के बीच में होगा. किसके बीच में होगा, 1 to 4 कार्बन के बीच में होगा. तो मेनी ऐसे मोनोसैकेराइड्स यूनिट दे आर ज्वाइंट विथ ईच अदर with the help of glycosidic bond to form the polymer monomer converted into monomer. This is the second example of the polymer. Third example is the nucleic acids. Third example is the nucleic acid. Nucleic acid is what? Nucleus is the polymer of nucleotides. Nucleotides क्या है? In previous lecture में I discussed detail. What is the nucleotides? Nucleotides is made up of sugar, phosphate plus nitrogenous base. अगर ये तीनों मिल जाते हैं that is known as nucleotide. Means all nucleotides joined with each other by phosphodiester bond, special type of bonds, and this bond is known as phosphodiester bond, phosphodiester bonds उसको बोलते हैं. जैसे फॉर एक डायग्रामेटिक आपको एग्जाम्पल से लूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. हियर इज द ग्लूकोज मालिक्यूल्स एंड हियर इज द 5' end, here is the phosphate groups, here is the one nucleotide adenine, nitrogenous bases, sugar and phosphoric acid, then joined with another nucleotide, with the help of a special bond, and this bond is known as phosphodiester bonds. This bond is known as phosphodiester bonds. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हियर इज द गुआनिन्स एंड दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होगा 3' to 5' के बीच में ये बॉन्ड्स फॉर्म होता है. तो दिस बॉन्ड इज नोन एज 3' to 5' phosphodiester bond. तो आप ये देख सकते हो कि हियर इज द 1 nucleotides, here is the another nucleotide, here is the third nucleotide. Means all the nucleotide chain they are joined with each other to form a polynucleotide chain. क्या बनेंगे? polynucleotide chain. ये polynucleotide chain बना और the polynucleotide chain is the polymer, ये is the example of polymers. तो आपको थर्ड
The example of the polymer means monomer, nucleotide, they are converted into polynucleotides with the help of bond and this bond is known as phosphodiester bond. तो हमने 3 ऐसे बायोमॉलिक्यूल की बात किया कि प्रोटीन is the polymer of the amino acid, they are joined with each other with the help of peptide bond. Second example, polysaccharides, many monosaccharides units, हजार more than 1000 भी होते हैं, they are linked with each other, they are joined with each other with the help of glycosidic bond. In the third example of the polymers, that is known as nucleic acid, this is the polymer of the nucleotide. And what is the nucleotide? Nucleotide is made up of sugar, phosphate and nitrogenous bases, and all the nucleotides, they are joined with each other with the help of a special bond, and this bond is known as phosphodiester bond. The phosphodiester bonds are formed in between sugar and phosphate molecule के बीच भी बनता है, in between 3 and 5 prime ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स, बीच में फॉस्फेट हो जाता है और दोनों तरफ से शुगर को अटैच करता चला जाता है. तो इस तरह से मैनी न्यूक्लियोटाइड दे आर ज्वाइंड विथ ईच अदर. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर कंटेंट ऑफ द बायोमॉलिक्यूल दैट इज नोन एज मेटाबोलाइट्स. देखो मेटाबोलाइट्स है क्या? मेटाबॉलिज्म समझते हो? व्हाट डू मीन्स बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग थिंग एज वेल एज आफ्टर द रिएक्शन. रिएक्टेंट के बाद क्या आता है? प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. जो प्रोडक्ट बनता है, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज मेटाबोलाइट्स. मेटाबोलाइट्स क्या है? प्रोडक्ट है आफ्टर द मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो दैट दिस प्रोडक्ट इज नोन एज मेटाबोलाइट्स. तो मैंने मीनिंग पहले लिखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटाबोलाइट्स. Metabolites is what? Metabolites are the products formed by metabolic reaction. और metabolic reaction क्या है? There are 2 type of metabolic reaction mostly generally takes place in the living thing. The first is anabolism and another is catabolism by which various products are formed. Again, the metabolites, there are 2 types, primary and secondary metabolites. अब ये बात आती है कि सेकेंडरी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी का मतलब कुछ उसके जो रिएक्शन हैं वो चेंज हो जाएंगे. जो यहाँ मैंने लिखा है नॉर्मल मेटाबोलिज्म, यहाँ पर होगा द प्रोडक्ट्स फॉर्म. यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होंगे? प्रोडक्ट यहाँ पर भी फॉर्म होंगे, फॉर्म by change of metabolic reaction. कुछ उसके रिएक्शन क्या होंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन चेंज हो जाएंगे रिएक्शन. तो देयर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज सेकेंडरी. लेटर एंड डिस्कस डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस ऑन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म. द प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइट्स नॉट मेटाबॉलिज्म. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. ये क्या है? प्रोडक्ट्स है. दे आर फॉर बाय द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म. हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म्स होते हैं. वेरियस टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म इनसाइड अवर सेल, इनसाइड अवर बॉडी. अभी कह रहे हैं कि वह जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आइडेंटिफाइबल भी होते हैं. फंक्शन, उनके फंक्शन को वो क्या कर रहे हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके फंक्शन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड नो रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. और मुझे ये भी जानकारी हो जाता है कि हमारे अंदर जो फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन होते हैं, जो प्रोसेसिंग होती हैं, उसमें उनका क्या रोल है, उनमें उनका रिस्पिरेशन में क्या रोल है, उनका डाइजेशन में क्या रोल है, उनमें एक्सक्रीशन में क्या रोल है. ये सारी चीज़ें हम उसको फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है, जो हमारे प्रोडक्ट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म से बने उनकी क्या रोल है, उसको भी हम जान पाते हैं. तो दैट इज नोन है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म. जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन से बनते हों और उनके फंक्शंस भी नोन हो. देखो आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड नोन और उनके रोल भी क्लियर कट हो. तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. सम एग्जाम्पल मेंशन हियर. अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड न्यूक्लिक एसिड. हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड इज द, आप कह सकते हो, मोनोमर यूनिट ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल. जब हमारे बॉडी में प्रोटीन का बिल्डअप होता है तो ये अमीनो एसिड के मिलने से बनता है. ग्लूकोज हम सभी जानते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन अवर सेल.
हमारे सेल में, हमारे बॉडी को जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अभी अभी हमने कहा कि लिपिड्स आर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। हमने कहा कि इसके बड़ी बेनिफिशियल्स भी रोल भी होते हैं लिपिड्स का। तो अगर इंसुलेटर ऑफ हीट के रूप में भी काम करता है और मेनी रोल्स ऑफ द लिपिड इन आवर बॉडी, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। न्यूक्लिक एसिड अभी भी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एज वेल एज आरएनए। तो डीएनए इज व्हाट? डीएनए इज ए टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। वह जेनेटिक मटेरियल्स होता है और इट रेगुलेट ऑल द बॉडी एक्टिविटी को वो रेगुलेट करता है। तो न्यूक्लिक एसिड इज आल्सो फॉर्म जो होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर? नेक्स्ट डिस्कस ऑन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। Now next, second, that is known as secondary metabolites. Secondary metabolite is what? मतलब मैंने पहले भी बताया कि प्राइमरी जो होता है नॉर्मल जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो उससे जो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, दैट इज नोन एज प्राइमरी मेटाबोलाइट। बट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। दिस प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय चेंज मेटाबॉलिक रिएक्शन। कुछ इंटरमीडिएट में बीच में ऐसा कुछ प्रोडक्ट आ जाए, अलग तरह के प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एंड दिस प्रोडक्ट आर वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। आज ऐसे भी देखे जा रहे हैं बहुत से प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं वो बेनिफिशियल हो रहे हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर, बहुत सारा यूज किए जा रहे हैं। वो लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे। एज वेल एज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, उनकी इकोलॉजी में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। सम कुछ का मैंने नाम यहाँ मेंशन हियर, रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस एंड सेंट एंड पिगमेंट्स। ऑल ऑफ दीज थिंग दे आर सिग्निफिकेंस, इनके सारे के सारे सिग्निफिकेंस होते हैं। और ये मोस्टली जो सिग्निफिकेंस किसके लिए हुआ? फॉर ह्यूमन वेलफेयर। रबर आज हम यूज कर रहे हैं, ड्रग्स यूज कर रहे हैं, मसाले यूज कर रहे हैं, सेंट्स यूज कर रहे हैं, और पिगमेंट्स जो होते हैं प्लांट पिगमेंट। इसके कारण से आज आप फोटोसिंथेटिक की बात अगर हम कर लेते हैं, जो आज कैरोटीनॉइड्स की अगर हम बात कर लें, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं दे आर बिलोंगिंग टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। लेटर डिटेल डिस्कस हम करेंगे। यह इज द
प्ले ए मेजर रोल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, हमारे लिए वेलफेयर एज वेल एज प्ले ए इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस फॉर द नेचर. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Thank you all of you. Have a nice day all of you.